Hello everyone. So today we are going to discuss the fundamental of investment. This is the subject of third year Bcom honors student of Delhi University. So today we are going to do chapter number 1, investment overview, which is actually a very basic chapter. It involves 100% of theory and it forms the fundamental for the further 11 chapters. Before we move forward, I would like to introduce myself. I am Ruchi. I am a student of Bcom honors, and of course, I am not a teacher. So, in case I make any sort of mistake while explaining, while quoting a formula or anything, please pardon me in advance. The book that I am following is Vanita Tripathi. Okay, the very first basic question that you need to ask is what is investment? Investment होता क्या है? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, लेट्स से आज मैंने 100 रुपीज अर्न करे थ्रू माई सैलरी और एनीथिंग. 80 रुपीज आई यूज इट फॉर द पर्सनल कंजम्पशन, ठीक है, और माई डे टू डे एक्सपेंडिचर, एंड 20 आई डिसाइड नॉट टू स्पेंड. व्हाट आई विल डू, ईदर आई विल सेव और आई विल इन्वेस्ट. ठीक है, invest. Why do you think I would invest in any sort of securities? I would invest in order to earn returns. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है? आप अपने करंट फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं सो दैट आप रिटर्न्स कमा सकते हैं उनके ऊपर. अच्छा, हाउ डिड यू ब्रिंग दिस 20 रुपीज? ऑफ कोर्स यू सैक्रिफाइस योर करंट you sacrificed your current consumption. ठीक है, फॉर द एक्सपेक्टेड इनकम इन फ्यूचर. आपको इनकम चाहिए फ्यूचर में, इसलिए आपने आज सैक्रिफाइस किया है. अच्छा, अब आप अगर 20 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो डू यू थिंक यू विल ऑलवेज अर्न प्रॉफिट ऑन दीज 20 रुपीज? ऑफ कोर्स नॉट. यू ऑल्सो मे सफर वेरियस लॉसेस ऑन दिस 20 रुपीज. सो दिस डिपेंड्स अपॉन योर इन्वेस्टिंग स्किल्स कि आप प्रॉफिट कमाते हैं या लॉसेस. Okay, the second question is, there are two types of investment, the real investment and the financial investment. The real investment refers to the tangible assets. जब आप एक tangible assets में अपना पैसा invest करते हैं, this could be land and building, this could be your plant and machinery, and these are generally for the very long term, let's say 5 to 10 years. ठीक है, and of course अगर आप कहीं plant and machinery purchase कर रहे, you can use it in your production process too. The financial investment refers to the investment in the intangible asset such as your financial assets. Financial assets are of many types. The few examples could be your share, bonds and mutual funds. These investment could be for the long term as well as for the short term. What will you get in return would be your interest, dividend, or your capital appreciation. What is capital appreciation? If I invest $100 today, after 5 years, इसी share का price 105 हो जाता है. So this 5 rupees is a capital appreciation. ठीक है? The third question that can actually come is quite important कि objectives क्या होते हैं investment के. मैं इन्वेस्ट कर क्यों रही हूँ? मुझे रिटर्न्स कमाने. ठीक है, अब रिटर्न्स चाहे लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो. शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स क्या आएंगे आपके? इंटरेस्ट आ सकता है, डिविडेंड आ सकता है, बट आपका लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स कैसे आएंगे? योर कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू. ठीक है, तो इसी को आगे 2 पॉइंट्स और बनाना है, कुछ नहीं है ना, रेगुलर इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन. ओके, व्हाट डू यू थिंक कि रेगुलर इनकम कहाँ से आ रही होगी? बॉन्ड से आ रही होगी, क्योंकि बॉन्ड्स क्या देते हैं आपको? इंटरेस्ट. अगर आप पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, बट देयर सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ रिस्क आपका रिड्यूस हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है. ठीक है, एंड दीज आर एक्चुअली प्रेफर्ड बाय योर म्यूचुअल फंड कंपनी और योर ओल्ड और रिटायर्ड पीपल. बट कैपिटल एप्रिसिएशन is in the equity generally. ठीक है, एंड यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि आपको यहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं मिल रहे होते. लेट्स से आपको इक्विटी में डिविडेंड्स मिले या ना मिले, इट इज नॉट लीगल कंपल्शन. ठीक है, तो आपका रिस्क ज्यादा हो जाता है, एंड दीज आर एक्चुअली प्रेफर्ड बाय द यंग पीपल. फोर्थ,
I may invest in the company just because to earn the tax benefit. ठीक है? And the fifth, this is the most important point, सेफ्टी ऑफ कैपिटल. जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कैपिटल सेफ रहे. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जंक बॉन्ड्स. जंक बॉन्ड्स क्या होते हैं? जंक बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स जिनकी क्रेडिट रेटिंग्स बहुत ही ज्यादा खराब होती है. लेट्स से सीसीसी, ठीक है, कुछ भी. तो दैट इज वेरी 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 बैड रेटिंग्स, एंड even after such bad ratings you are investing in such bonds, then you are stupid. ठीक है? तो आपकी कैपिटल बिल्कुल भी सेफ नहीं है. सो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि आपकी कैपिटल हमेशा सेफ रहनी चाहिए, जब भी ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके पूरे हो पाएंगे. ठीक है? The fourth, what are the factors affecting my investment? The first, return, as I said. Okay, let's do it with a example now. Let's say आपने 100 रुपीज का शेयर्स खरीदा, जिसके ऊपर आपको 5 रुपए डिविडेंड मिला. ठीक है? एंड आफ्टर 1 ईयर इसका प्राइस हो गया 105. तो लेट्स से आपने 5 रुपए कहाँ से कमा लिया? ग्रोथ से. दैट वाज अ कैपिटल एप्रिसिएशन. तो आपके टोटल रिटर्न कितना हो गया? 10. अब ये 10 रुपए किसके ऊपर मिला आपको? 100 रुपए के ऊपर. तो आपके रिटर्न हो गया 10%. ठीक है? द सेकेंड इज लिक्विडिटी. लिक्विडिटी रेफर्स टू द मनीनेस. मतलब मनीनेस रेफर्स टू कि आपका पैसा कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है. जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है द बेटर इट वुड बी. थर्ड, रिस्क. देयर हैज टू बी अ समवॉट बैलेंस बिटवीन द रिस्क एंड द रिटर्न. ठीक है? अगर आप रिस्क ज्यादा लेंगे तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलने के चांसेस है. बट अ रैशनल इन्वेस्टर would always prefer कि आपका रिस्क मिनिमम हो एंड आपके रिटर्न्स मैक्सिमम हो. एंड इसे हम फ्यूचर में जाके बोलने वाले हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. ठीक है? फोर्थ, आई हैव डिस्कस सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन. लेट्स से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है 9% पे, एंड जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उस पर आपको सिर्फ 8% मिल रहा है. तो इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? अ वेरी बैड थिंग. ठीक है? आप अपना इन्फ्लेशन भी कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं. तो आपको ऐसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपका इन्फ्लेशन तो एक्चुअली कंपनसेट हो जाए. यू हेज योर सेल्फ, यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट द इन्फ्लेशन. व्हाट इज इन्फ्लेशन? डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर और एन इन्वेस्टर. सिक्स्थ, टैक्स बेनिफिट. एज डिस्कस्ड अर्लियर, जितना ज्यादा टैक्स बेनिफिट्स मिलता है उतना ज्यादा एक इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है फॉर द इन्वेस्टमेंट. मार्केटेबिलिटी. मार्केटेबिलिटी रेफर्स टू दी हाउ इजली यू कैन बाय और सेल योर शेयर्स. लेट्स से आपका जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है बहुत ही ज्यादा एक सूटेबल मैकेनिज्म देता है जहां पे आप यू कैन बाय एंड सेल योर शेयर्स इजली. तो मार्केटेबिलिटी, योर इन्वेस्टर आर रेडली in a position to buy and sell. The fifth, what is speculation and what is investment? Speculation होता है जहां पे आप रिस्क तो बहुत ज्यादा लेते हैं लेकिन आप रिटर्न भी अच्छा कमाते हैं. ठीक है? एंड यहाँ पे बहुत मतलब एक चांस भी होता है कि आपको लॉसेस भी हो सकते हैं. ठीक है? Let's do a difference and then we'll understand better. Time horizon. Investment has to be generally for the long term. Speculation बहुत ही ज्यादा short term के लिए होती है. Risk, इन्वेस्टमेंट में आप रिस्क करेंगे, शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो लो मॉडरेट डिपेंडिंग अपॉन योर सिक्योरिटीज. स्पेकुलेशन में एज आई मेंशन्ड आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है. एक्सपेक्टेड रिटर्न, आप कितना रिटर्न कमाने वाले इन्वेस्टमेंट से डिपेंडिंग अपॉन योर सिक्योरिटीज इट मे वेरी फ्रॉम लो टू मॉडरेट. बट स्पेकुलेशन में आपका रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन इनकंसिस्टेंट होते हैं. मतलब देयर इज वेरी अनसर्टेन होंगे या नहीं होंगे वो रिटर्न्स. ठीक है? फंड्स, अपना पैसा ही इन्वेस्ट करते हो लेकिन स्पेकुलेटर्स आपसे बोरो भी कर सकते हैं. मतलब स्पेकुलेटर्स कैन एक्चुअली बोरो मनी फ्रॉम समवन एंड देन इन्वेस्ट. ठीक है? एंड मार्जिन ट्रेडिंग रेफर्स टू मतलब जितना प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज वो एज अ फीस लेते हैं एंड वो कहते हैं ये मेरी फीस है एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट यू कीप इट. ठीक है? तो वो मार्जिन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं. फिफ्थ, इनकम. अगर आप
इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिविडेंड मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सकता है। बट आप स्पेक्यूलेशन करते हो तो आपको मेन बेनिफिट कैसे होता है? चेंज इन द प्राइस ऑफ द एसेट। ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन जो सबको मिल रही है वही उस पे मुझे मिल रही है एंड उसी बेसिस पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। बट अगर मैं स्पेक्यूलेशन कर रही हूँ तो दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो या ना हो दैट्स नॉट कंपल्सरी, बट that is basically from the information which is not generally available to the public, तो आप उसी से स्पेकुलेशन करते हो। okay, the sixth point is the risk return trade off. as I mentioned earlier थोड़ा शॉर्ट में, एक रैशनल इन्वेस्टर क्या चाहेगा? okay, I'll give you two situation। ठीक है, एक आपके पास केस है कि रिस्क है 15% एंड रिटर्न है लेट्स से 20%। ठीक है, सेकंड में कहती हूं मैं रिस्क मेरा 7% है एंड रिटर्न मेरा लेट्स से 25% है, तो क्या करना पसंद करोगे? कौन सी सिक्योरिटी लोगे? सिक्योरिटी 1 या सिक्योरिटी 2? ऑब्वियसली सिक्योरिटी 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है एंड रिटर्न ज्यादा है, तो दैट इज नोन एज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, जहाँ पे मैं अपना रिटर्न मैक्सिमम करना चाहती हूँ और मैं अपना रिस्क मिनिमम करना चाहती हूँ। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स आर योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जहाँ पे रिटर्न बहुत ही कम होता है बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ रिटर्न दैट यू आर गेटिंग फॉर योर टाइम वैल्यू कंपनसेशन। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है एंड रिस्क नील होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है। बॉन्ड्स रिस्क कम है क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलता जा रहा है एंड रिटर्न भी लो होता है। क्योंकि आपने रिस्क नहीं लिया तो रिटर्न भी एक्सपेक्ट मत करना। प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स हैव हाईएस्ट रिटर्न्स एंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क। व्हाई डू यू थिंक इसमें रिटर्न रिस्क कितना हाई है? क्यों? क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म के लिए पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट आता है, डिविडेंड मिले या ना मिले डिपेंड ऑन द कंपनी पॉलिसी, और कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही है या नहीं हो रही दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर कंपनीज ग्रोथ। तो आपका रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है अगर, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा होता है। ओके, लेट्स से अब आपने 100 रुपए कहीं इन्वेस्ट करे। ठीक है, अब आप कितना रिटर्न्स इसके ऊपर मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे? व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न दैट यू एक्चुअली वांट? यू विल से कि जितना मुझे ट्रेजरी बिल्स दे रहे हैं, लेट्स से 9% दे रहे हैं, उतना तो मुझे इस सिक्योरिटी से मिलना ही चाहिए। सो दिस इज द मिनिमम रिटर्न दैट आई वांट, रिस्क फ्री, दैट इज योर ट्रेजरी बिल से, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मुझे कितना मिल रहा है उतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ लेट्स से मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ XYZ लिमिटेड में, मैं एक रिस्क ले रही हूँ। ठीक है, तो आई नीड द कॉम्पनसेशन फॉर दैट रिस्क टू। तो लेट्स से मैं कहती हूँ रिस्क कॉम्पनसेशन मुझे 2% तो एक्चुअली मिनिमम चाहिए। दिस 2% डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। ये मैंने 2% ऐसे ही बोल दिया है, ये इतना इजी कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, तो ओवर एंड अबव आई नीड 2%. So what is the total amount of minimum return that I need from your company is 11%. ठीक है, 7 point different types of securities everyone know I guess. Equity shares होते हैं, equity shares preference shares हो सकते हैं। ठीक है, bond and debentures हो सकते हैं, treasury bill, your government securities, other securities could be your mutual funds। ठीक है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट जहाँ पे आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं एंड मनी मार्केट जहाँ पे आप अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम आई एम कैटेगराइजिंग मार्केट्स इनटू 2। ठीक है, तो ये डिफरेंस है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें आपके इक्विटी मार्केट आ जाता है, डेट मार्केट आता है एंड डेरिवेटिव मार्केट आता है। इसमें आपके ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, COD एंड कॉल मनी आता है। Obviously, this is less liquid as compared to the money market. Capital market is required to raise funds. Company को जब पैसा चाहिए होता है for the medium or the long term, company raises through the capital market. ठीक है, money market is for the borrowing and the lending in very short term. Rate of return,
अगर आप अपना पैसा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेगा, अगर आप अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ओके, व्हाई इट इज असेंशियल टू मेंटेन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, इट इज essential to maintain the liquidity. Primary and secondary. Primary refers to the market where the shares are issued for the first time. Let's say कोई भी XYZ कंपनी ने फर्स्ट टाइम अपना पैसा रेज किया थ्रू IPO, तो फर्स्ट टाइम जहां मेरे शेयर्स इशू हो रहे हैं दैट इज द प्राइमरी मार्केट। बट अगर लेट्स से रिलायंस ऑलरेडी शेयर्स इशूड है, बाइंग एंड सेलिंग चल रही है, दैट इज डन इन द सेकेंडरी मार्केट। तो न्यू सिक्योरिटीज जहां फर्स्ट टाइम इशू हो रही है दैट इज योर प्राइमरी मार्केट, एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जहां ट्रेड हो रही है दैट इज योर सेकेंडरी मार्केट। प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, व्हाट डू यू थिंक? इसमें तो डिमांड एंड सप्लाई से होता है, ठीक है। तो मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई विल डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटी। यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? इशूअर कंपनी। अगर आज वो बोलेगी 100 का है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बुक बिल्डिंग मेथड के ऊपर, ठीक है। प्रीमियम पे भी दे सकती है, डिस्काउंट पे भी दे सकती है, या पार पे भी दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी पॉलिसीज, या कैसे है, क्या किस प्राइस पे इशू करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। वेरिएबिलिटी इन द प्राइसेस, जहाँ पे इशू प्राइस फिक्स ही रहेगा, अगर कंपनी ने बोला कि 100 है तो 100 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइसेस हिलते डुलते रहेंगे। बाइंग एंड सेलिंग पार्टीज इन्वॉल्व, The new securities are sold by the company and bought by the investor. यहाँ पे इन्वेस्टर्स के बीच में ही आपका डीलिंग होती है, यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पे इन्वेस्टर्स बीच में ही होते हैं, यहाँ पे कंपनी भी इन्वॉल्व होती है। Financing for the business, these are not very important points, ठीक है। 4 or 5 points are actually enough for the differentiation. Who regulate your securities market in India? SEBI, RBI, Department of Company Affairs, and Ministry of Finance. Investment decision process is covered in chapter number, I guess, 3 or 4 in very detail. So यहाँ पे मैं ये नहीं कर रही हूँ डिस्कस, क्योंकि ये टर्म्स जब भी समझ में आएंगी when you understand पोर्टफोलियो रिविजन, पोर्टफोलियो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नहीं करते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये फ्यूचर चैप्टर्स में बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ। हाउ डू यू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी? लेट्स से एक बंदा मिस्टर एक्स, ठीक है, वो अपनी ऐप से, लेट्स से कोई भी ऐप ले लेते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट ऐप से डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करता है। ही बाइज, ही सेल्स शेयर्स, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेट्स से मिस्टर एक्स कहता है मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि कौन सी सिक्योरिटीज में कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है? म्यूचुअल फंड में अपने पैसे देता है। लेट्स से वो कहता है लो भाई 10,000 रुपए लो एंड इन्वेस्ट माई फंड्स इनटू वेरियस कंपनीज एंड गिव मी रिटर्न्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मिस्टर एक्स डायरेक्टली किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपना म्यूचुअल फंड्स को पैसा दे रहे हैं, जो फर्दर दूसरी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न्स कमाएंगे, एंड मिस्टर एक्स को रिटर्न्स वापस करेंगे, ऑब्वियसली लिटिल लेस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय इन्वेस्टर देमसेल्व्स। मिस्टर एक्स यहाँ पे खुद अपनी ऐप से बाय एंड सेल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? इन्वेस्टमेंट कंपनी को अपना पैसा दिया था, म्यूचुअल फंड को, और सिक्योरिटीज में डायरेक्टली डील नहीं किया था। कौन कौन सी एप्स में मार्केट दिखेगी? कैपिटल मार्केट देख सकती है, मनी मार्केट देख सकती है, डेरिवेटिव मार्केट देख सकती है। बट यहाँ पे यू कैन इन्वेस्ट योर म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड्स। कंट्रोल, मिस्टर एक्स वुड हैव डायरेक्ट कंट्रोल कि मैं कौन सी सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। क्या उनके पास म्यूचुअल फंड्स में होगा कि म्यूचुअल फंड्स को बताया कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना? नहीं, ही विल नॉट हैव द कंट्रोल ओवर हियर। किसका कंट्रोल होगा यहाँ पे? फंड और इन्वेस्टमेंट कंपनी का कंट्रोल होगा, ठीक है। देखो मिस्टर एक्स ने
म्यूचुअल फंड में पैसा दिया, म्यूचुअल फंड ने ABCD कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ से उन्हें लेट्स से मिला 500 रुपए का 500 रुपीज का रिटर्न्स। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मिस्टर एक्स को लेट्स से उन्होंने दे दिया 400 दे केप्ट टू देमसेल्व्स। तो यहाँ पे किसका कंट्रोल है? यहाँ पे म्यूचुअल फंड का कंट्रोल है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मिस्टर एक्स कैन नॉट टेल म्यूचुअल फंड कंपनी टू इन्वेस्ट इन ए अलग कंपनी। मतलब यू कैन नॉट जस्ट टेल मी कि भाई मैं एस में इन्वेस्ट करूँ, दिस विल डिपेंड अपॉन माय इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है। कॉस्ट ऑफ एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग इज इंकर्ड बाय मिस्टर एक्स, क्योंकि वो डायरेक्ट कर रहे हैं तो खुद देखना पड़ेगा। यहाँ पे सब कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी करेगा। स्किल्स एंड टाइम, आपको सब कुछ पता होना चाहिए अगर आप खुद पैसा इन्वेस्ट करें, लेकिन यहाँ पे आपको कोई एक्सपर्टीज या स्किल्स नहीं चाहिए, म्यूचुअल फंड खुद कर देगा। कन्वीनियंस, ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग बाय योरसेल्फ इज लेस कन्वीनियंट एज कंपेयर्ड टू जस्ट आउटसोर्सिंग योर वर्क ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, तो इट इज वेरी कन्वीनियंट, इट इज लेस कन्वीनियंट। अप्रोचेस, दो तरीके के अप्रोचेस होते हैं, एक्टिव इन्वेस्टमेंट या पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग मतलब आप डेली बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, आप सारी इन्वेस्टमेंट जो भी आपके पोर्टफोलियो में है आप उन्हें केयरफुली एनालाइज कर रहे हो, कितना रिटर्न्स दे रही है, क्या रिटर्न्स दे, नेक्स्ट करूँ, कैसे करूँ, एंड इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग इन अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यू हैव टू रिवाइज योर पोर्टफोलियो, यू हैव टू असेस योर पोर्टफोलियो। ठीक है, कौन सी सिक्योरिटीज नहीं रखनी चाहिए, अब कौन सी बेचनी चाहिए, कौन सी नहीं बेचनी चाहिए। पैसिव क्या होता है? सिंपली आप एक जनरल फंड में इन्वेस्ट कर दो, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो, एक लॉन्ग होराइजन के लिए उसे होल्ड करो एंड डू नॉट डू ऑन रेगुलर बेसिस। आपको उतना स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 10 years, लेट्स से मैंने आज इन्वेस्ट किया तो आफ्टर 10 years में देख लूंगी क्या प्राइसेस है। ठीक है, एंड यहाँ पे आज मैंने अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट किया तो मैं कल देखूंगी, परसों, और आई कैन से 1 week 1 month, तो मैं ऑन अ रेगुलर इंटरवल्स चेक करती रहती हूँ। Strategies of investment, diversification, hedging and arbitrage. What is diversification? Diversification refers to the मतलब आप अपना पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। लेट्स से आपके पास 1000 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए। Would you like to invest all your 1000 rupees in one just company XYZ? Or would you like to invest in more than one companies? Obviously more than one company. Why? Because your funds would get distributed, your risk will get diversified. आपका रिस्क, लेट्स से यहाँ पे आपने एक होटल इंडस्ट्री में दे दिया, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दे दिया, ठीक है, एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में दे दिया, तो इंडस्ट्री के ऊपर अलग अलग रिस्क आएगा, अलग अलग पैसा इन्वेस्ट करा। ठीक है, लेट्स से आपने 10 रुपए यहाँ कर दिए, 20 रुपए यहाँ कर दिए, 30 रुपए यहाँ कर दिए, बाकी आपने कहीं और करा। ठीक है, तो यू विल डाइवर्सिफाई योर फंड्स इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग योर फंड्स टू अ सिंगल कंपनी, क्योंकि अगर ये डूब गई तो आपके पूरे 1000 रुपए डूब जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि सारी इंडस्ट्रीज एक साथ डूबे इकोनॉमी में। ठीक है, हेजिंग मीन्स प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ रिस्क। लेट्स से आपका बिजनेस है यूरोप में, अब आपको डर है कि फॉरेन करेंसी ऊपर नीचे जाएगी तो आपकी रिसीट्स एंड पेमेंट्स भी ऊपर नीचे जाएगी। तो in order to just protect yourself from such kind of risk, this is just an example, foreign currency risk, you are dealing in your securities. What could be an option? The derivatives. आप अपना पैसा ऑप्शंस पे लगा सकते हैं, फॉरवर्ड फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड फ्यूचर्स कॉल पुट। ठीक है, आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज रेफर्स टू टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ डिफरेंस इन प्राइसेस। बीएसई में कुछ और प्राइस है, एनएसई में कुछ और प्राइस है, चाहे वो 10 रुपए का ही क्यों ना डिफरेंस, लेकिन है। ठीक है, तो उस प्राइस डिफरेंस का एडवांटेज लेना इज आर्बिट्रेज। एक जगह कुछ और प्राइस, दूसरी जगह कुछ और प्राइस, तो इस दोनों का डिफरेंस वुड बी माय प्रॉफिट।
Okay, the second last topic is impact of taxes on investment. एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. एक है सिक्योरिटी ए और एक है सिक्योरिटी बी. सिक्योरिटी ए कहता है मैं आपको 4% रिटर्न दूंगा, लेकिन ये टैक्स फ्री है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होगा. सिक्योरिटी बी कहता है ये XYZ कंपनी का है, मैं 4.5 दे रहा हूं. कौन सा बेटर है? यू विल से दिस, नहीं, ये बेटर नहीं है. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अभी टैक्स डिडक्ट होना बाकी है. लेट्स से 28% टैक्स रेट है, ठीक है. तो 4.5% आपने कमाया, 28% तो टैक्स ही ले गया. तो ये लाइक टू लाइक कंपैरिजन तो वैसी भी नहीं है. तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन अ टैक्सेबल इक्विवेलेंट यील्ड सो दैट यू कैन कंपेयर विद अ इन्वेस्टमेंट दैट इज नॉट टैक्स एग्जेम्प्टेड. ठीक है. तो आप क्या करेंगे, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे टैक्स फ्री रेट विच इज 4%, 1 माइनस 28%. ठीक है, लेट्स डू दिस. ये कितना आता है? 1 minus 28. This is 4%, 0.72. 4 divided by 0.72. This would come out to be 5.56. तो this means अगर आपकी ये टैक्स फ्री सिक्योरिटी नहीं होती और उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो रहा होता, तब भी ये कितना देती? 5.56%. एंड ये कितना दे रही है? 4.5. तो which one is better? This is better. ठीक है. The last topic is impact of inflation investment. आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चलता ही जा रहा है 9% से, लेकिन आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 12%. तो आपका रिटर्न क्या 12% है असली में? नहीं है, आपका 12% नहीं है, आपका बहुत कम रिटर्न है. पता है कितना है? सिर्फ 2.75 इज द एक्चुअल रिटर्न दैट यू आर अर्निंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट एंड नॉट 12%. क्यों? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म. Real rate of return is the return adjusted for inflation. That is, it does not have any element of inflation rate. मतलब जो आपका ये 2.75 आया, this is the amount which is the actual investment. This 12% also includes your inflation rates. ठीक है. तो this is a nominal rate, this is a real rate, and this is your inflation rate. This is important formula that you need to remember. ठीक है, ये बहुत important formula है, ये याद करना पड़ेगा. लेमैन क्या कहेगा? yes, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, 12% रिटर्न मिल रहा है. नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है. सिर्फ आपको ये 2.75 दे रही है. क्यों? क्योंकि 9% तो आपका इन्फ्लेशन ही है. ठीक है. तो आप अगर इन्फ्लेशन हटाएंगे तो आपको असली में पता चलेगा कि ये आपकी सिक्योरिटी कितना पैसा दे रही है. सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माय इन्वेस्टमेंट, देन देयर वर फ्यू डिफरेंसेस, प्राइमरी, सेकेंडरी, and your capital market, your money market, your direct investing and your indirect investing. The third was your inflation का क्या impact होता है and your tax का क्या impact होता है. ठीक है. The investment process is the topic that I will cover in the later videos, but not now. And who regulates your securities? What are the types of securities that you can invest? ठीक है. So thank you so much for